السلام علیکم ناظرین، کشمیر بلٹن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں میں ممتاز۔ ہم ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ مرکزی وزراء کا پہلا قافلہ جموں کے بجائے پہنچا سری نگر۔ جتیندر سنگھ نے مودی کی جم کر کی تعریف، دفعہ 370 کے خاتمے کا کیا دفاع، کہا مودی ہے مہاپروش۔ مرکزی وزراء کا دورہ جموں کشمیر گمراہ کن، غلام نبی آزاد کا رد عمل، یوسف تارگامی وزراء کے دورے کو قرار دیا محض دکھاوا۔ کشمیر کے لیے پری پیڈ موبائل خدمات بحال، روہت کنسل نے کی پریس کانفرنس۔ کشمیر کے 8 اضلاع وائی پی سے باہر، محدود انٹرنیٹ بھی معطل۔ معطل ڈی ایس پی دیویندر سنگھ مقدمے کی این آئی اے کرے گی تحقیقات۔ وادی کشمیر میں برف باری کے بعد ہنوز عام زندگی متاثر، عوامی شکایات، انتظامیہ پر برہمی کا اظہار۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ دہلی سے جموں پہنچنے والے 3 مرکزی وزراء کا جہاز موسم کی خرابی کے باعث جموں کے بجائے سری نگر کی طرف موڑ دیا گیا اور تینوں وزراء شیڈول سے ہٹ کر پہلے سری نگر پہنچ گئے۔ ان تینوں وزراء میں دفتر وزیر اعظم کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، اشونی چوبے اور ارجن میگھوال ہیں۔ خیال رہے آج سے مرکزی وزراء کے دورے کا آغاز ہوا ہے۔ پہلے قافلے میں 3 مرکزی وزراء سری نگر پہنچے ہیں۔ 18 جنوری سے 24 جنوری تک 36 مرکزی وزراء جموں کشمیر کے مختلف اضلاع کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں مرکزی وزراء دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے تاحال جموں کشمیر میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں سے لوگوں کو واقف کروائیں گے۔ اس دورے میں مرکزی وزراء سے جموں کشمیر کی سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ حیات سے جڑے افراد ملاقات کریں گے۔ مرکزی وزراء یہاں کی نمائندگیوں کو دفعہ 370 کے خاتمے کے تحت جموں کشمیر کو مرکز کی جانب سے پہنچنے والے مبینہ فائدوں اور مرکزی سرکار کے منصوبہ بندیوں سے واقف کروائیں گے۔ اور دفتر وزیر اعظم کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مودی بھکتی میں پھول نچھاور کرتے ہوئے دفعہ 370 کے خاتمے پر کہا ہے کہ شاید ہمیں اس لیے انتظار کرنا پڑا کہ پرماتما کو بھی یہی منظور تھا کہ مودی جی جیسا کوئی مہاپروش دھرتی پر اتارے اور یہ نیک کام ان کے ہاتھوں سے ہو۔ سری نگر پہنچنے کے بعد منعقدہ پہلے جلسے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 کے خاتمے کا زبردست دفاع کرتے ہوئے مودی اور مودی حکومت کی تعریفیں کی۔ خیال رہے مرکزی وزراء جموں کشمیر کے 60 مقامات کا دورہ کریں گے۔ واضح ہے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیے ہوئے 5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل مودی حکومت پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وادی میں صورتحال معمول پر نہیں آئی ہے۔ کشمیر میں معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، نظام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، لوگوں میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ تاہم اس درمیان مودی حکومت کے 36 وزراء کا آج سے 1 ہفتے کے لیے جموں کشمیر کے دورے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دریا جو وہاں بہتا ہے اس کا جو سیلاب کو لے کر کے، باڑھ کو لے کر کے جو انوبھو ہے، اس کی شیئرنگ کی گئی جموں کشمیر پرشاسن کے ساتھ، تاکہ جیلم کے سندرب میں جو 2014 میں باڑھ ہے، بڑے مہتوپورن باتیں ہو چکی ہیں جس کی اور ابھی لون نے اشارہ کیا۔ تیسرا کاریہ رہا ہمارا 3 دیوسیہ کاریہشالہ، 1000 ادھیکاری آئی اے ایس اور کے ایس کے 3 دن میں دیش بھر سے، الگ الگ پردیشوں سے آ کر کے ان کو الگ الگ ستروں میں الگ الگ انوبھووں سے پریچت کروایا گا۔ اور ابھی حال ہی میں پہلی بار پوروتر سے باہر بیمبو کو لے کر کے کاریہشالہ ہوئی اور پردرشنی بھی ہوئی ہے۔ اور اب ہم نے ایک 3 سدسیہ ٹولی بھی گٹھت کی ہے جو یہاں بیمبو کا، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کٹھوعہ میں اتنا بیمبو ہے، سانبا میں اتنا بیمبو ہے، ریاسی میں بیمبو ہے، ادھم پور میں بیمبو ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ وہ مکیش کا ایک گیت تھا، بہت دیا دینے والے نے تجھ کو، آنچل میں نہ سمائے تو کیا کیجیے۔ مجھے کبھی کبھی بڑا بے صبری بھی ہوتی ہے، ہم
اسی میں اپنا سمے گزار دیتے ہیں. کون کہاں بیٹھا ہے اس کو نیچے کیسے لانا. جو شمشیر جی نے ابھی باتیں بتائی, یہ باتیں ہو چکی, یہ کرم شروع ہو چکا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ سیز اونلی, آئی سی واٹ دی مائنڈ نوز. فرسٹ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور مائنڈ. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کایا پلٹ دی ہم نے پوروتر میں اسی بیمبو کے سہارے, اور یہاں ہمارے بغل میں بیمبو ہے. 100 سال پرانا قانون بدلا مودی جی کے سامنے جب رکھا. 1919 کا قانون ہے. انڈین فارسٹ انگریز بنا گئے تھے جب میں نے ان کے آگے رکھا کہ اس کو گراس کہا جاتا ہے. مودی جی نے ایک چھڑ نہیں لگایا, کیبنٹ میں لا کر کے 100 سال پرانا قانون بدل کے فارسٹ ایکٹ سے باہر نکالا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. قائد غلام نبی آزاد نے مرکزی وزراء کے دورہ جموں کشمیر کو گمراہ کن قرار دیا ہے. غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ ملک اور دنیا کو گمراہ کرنے کی مرکزی سرکار کی یہ تیسری کوشش ہے. غلام نبی آزاد نے کہا کہ یہ ایسے وقت ہیں جو منتخبہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, جبکہ ان سیاسی رہنماؤں کو قید و بند میں رکھا گیا ہے. انہیں تاجرین اور بے روزگاروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حکومتی رویے سے جموں کشمیر کے لوگوں میں حکومت کے تئیں مزید ناراضگیاں بڑھتی ہیں. جو لیڈرز ہیں اصلی پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو تو بند رکھا ہے, یا ان کی پارٹی کے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے. سول سوسائٹی سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے. ٹریڈ اور کامرس کے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے. ٹرانسپورٹر سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے. ٹورزم سے جو سمبندت رکھنے والے لوگ ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے. ہینڈی کرافٹس جو بند ہو گیا ہے اس سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے. جموں کے جو بزنس طبقہ, جو بزنس سفر ہوا ہے, ان سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے. ان امپلائڈ یوتھ سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے. تو یہاں سے ملنے کا کس سے کیا فائدہ؟ یہاں سے جائیں گے آرمی والے سے ملیں گے, وہاں لنچ کھائیں گے کہیں آئی بی کے آفیسر کے ساتھ, اور 4-5 لوگ جو یہاں ملتے جلتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے ان سے ملائیں گے اور پریس کانفرنس دیں گے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک تیسری اٹیمپٹ کیندری سرکار کی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ آ رہا ہے. پارلیمنٹ میں اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ 5 سال تب تک تو 6 مہینے ہو جائیں گے کہ 6 مہینے آپ نے جموں کشمیر بند رکھا, آپ نے انٹرنیٹ بند رکھا, آپ نے ٹورزم کو ختم کیا, آپ نے ایجوکیشن کو ختم کیا, ہیلتھ کو ختم کیا, لوگوں کا بیپار ختم کیا. تو اب بتاؤ, تو اب یہ کچھ کہانیاں وہاں سے لے کے آئیں گے اور دنیا کو سنائیں گے. لیکن میں کل ہی آیا ہوں وہاں سے, 2 دن کا کنونشن تھا ہماری پارٹی کا, اور 20 کے 20 ڈسٹرکوں سے لوگ تقریباً 400-450 کے قریب لیڈرز آئے تھے. ان سے جو بات ہوئی, انہوں نے بات بتائی کہ 70 سال میں آزادی کے بعد آج تک اتنی بیکاری اور بے روزگاری. ادھر سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد یوسف طارقامی نے مرکزی وزراء کے جموں کشمیر دورے کو محض دکھاوا قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سیاسی قائدین قید و بند ہیں, تجارتیں تباہ ہو چکی ہیں, بنیادی سہولیات سے لوگ محروم ہیں. مواصلاتی نظام کے تحت کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے. در حقیقت یہی آج کے کشمیر کا ماڈل ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت کشمیر میں چل رہا ہے وہ سارے ملک کے لیے ایک آگاہی ہے کہ وہ اپنے جینے کے حق کے ساتھ جمہوری اور آئینی تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں تاکہ ان حقوق کی حفاظت کی جا سکے. Any political activity in Kashmir, not allowing the parliamentarians of the Indian Parliament to visit Kashmir, not to allow the senior leaders of the country to talk to the people of Kashmir. If something has been done there, like development and all that, why they feel shy to prevent the people of the rest of the country not to acknowledge that on the ground, not to see that development on the ground, not to talk to the people of Kashmir. So that exposes their hollow claim. It's not development. Virtually they have denied everything which is ordinarily available to every citizen. You know, our business is shattered. You know, our education institutions have remained closed.
You know, our hospitals are inaccessible to the larger sections of the population. You know, we are cut off from the external world, including other parts of the country. We can't communicate. And now virtually the whole leadership, cutting across the political divide, cutting across the ideological divide, they have been put in either custody or prevented from conducting their legitimate political activities. This is the showpiece. This is the model they have created in Kashmir. That's why I appeal to the people of the rest of the country. What is happening today in Kashmir is a big signal, is a big warning to the rest of the country. All of us must join together in defense of our democratic rights, civil liberties, and right to life must be protected. The Constitution, which has provided us certain direction, that must be protected. और माजी में बीजेपी की हलीफ रहने वाली पार्टी शिवसेना आज मुसलसल बीजेपी की पॉलिसीज़ की मुखालिफत कर रही है। शिवसेना जम्मू कश्मीर विंग की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे की मुखालिफत में मुजाहरा किया। उन्होंने मोदी से सवाल किया कि आखिर इस तरह के दौरों के क्या माने हैं। मुजाहरे की नुमाइंदगी करने वाले शिवसेना लीडर ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बावजूद जम्मू कश्मीर के अवाम खुद को लूटा हुआ महसूस कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद लेकर रहे। जी सर, आज का जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदर्शन है, वो जो प्रतिनिधि मंडल जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिनों के अंदर 36 मंत्रियों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर भेज रहे हैं। इससे पहले विदेश प्रतिनिधि मंडल यहाँ का दौरा कर चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि दौरे का क्या महत्व है। पूरा जम्मू कश्मीर की सारी जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद भी अपने आप को हम लोग लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद जमीनी तौर पर कितने भी दावे किया जाए, मगर जम्मू कश्मीर की जनता को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से। हम पूछना चाहते हैं, ये प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के से मुलाकात कर रहा है जो निर्धारित लोग हैं, जो इनके भगत हैं, जो इनके मोहरे हैं। क्यों नहीं वो शिवसेना से आकर मिलते, क्यों नहीं आम पब्लिक के अंदर जाते? कब जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं के अंदर आरक्षण मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर ये इतना दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि कब इंटरनेट सेवा बहाली होगी। हम ये प्रतिनिधि मंडल से, जनता से भी सवाल करते हैं। और 5 माह बाद कश्मीर के लिए प्रीपेड मोबाइल खिदमात बहाल की गई हैं, जबकि जम्मू डिवीज़न में 2G मोबाइल डेटा पोस्ट पेड सार्फिन के लिए वाइट लिस्ट साइट्स के इस्तेमाल के लिए बहाल कर दिया गया है। कश्मीर में वाइट लिस्ट के तहत कुपवाड़ा और बांदीपुरा को रखा गया है। टेलीकॉम खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को इस सिलसिले में हिदायत भी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने मशरूत तौर पर बहाल की गई इस खिदमात से मुताल्लिक़ प्रेस ब्रीफिंग में तफसीलात बताई हैं। ख्याल रहे इसी दौरान हुकाम ने कश्मीर में फराहम की जाने वाली मशरूत और महदूद इंटरनेट खिदमात भी 8 अजला से बर्खास्त कर दी हैं। श्रीनगर, बुडगाम, गंदरबल, बारामूला, अनंतनाग, कोलगाम, शोपियान और पुलवामा के लिए इम्तनाआत रहेंगे। ख्याल रहे इन अजला को वाइट लिस्ट में नहीं रखा गया है। All of you are aware that barely 4 days ago I had spoken to you and briefed you in detail about the enhancements in access and communication facilities and further facilitations that were being provided in Kashmir as well as Jammu divisions of J&K. In the Kashmir division, these included broadband facilities for essential services such as banks, government offices, and facilities for trade, tourism and travel establishments, and 400 additional internet kiosks. In the Jammu division, these included 2G connectivity on post-paid mobiles for accessing white-listed sites
in 5 identified districts. It was also clarified that the overall effort shall be to facilitate and to keep restrictions to the bare minimum based on the ground situation. Consistent with the above philosophy and after a careful review, the competent authority has ordered today that voice and SMS facility shall be in all 10 districts of Jammu division, and to begin with in the 2 revenue districts of Kupwara and Bandipora in the Kashmir division. Mobile internet connectivity shall however remain suspended in Srinagar, Budgam, Ganderbal, Baramulla, Anantnag, Kulgam, Shupian and Pulwama. The telecom service providers are being issued instructions to operationalize the above directions immediately after providing for all the safeguards detailed in the order issued today by the competent authority. There is one more issue I want to share with you. You are aware that as part of a special public outreach program, 36 union ministers are visiting Jammu and Kashmir this week, where they will participate in 60 public outreach programs. اور وادی کشمیر میں 5 مہینوں بعد پریپیڈ موبائل خدمات اور مشروط طور پر بعض اضلاع میں 2G خدمات بحال کی گئی ہیں، جس پر عوام اور بالخصوص صحافیوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ خیال رہے وادی کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل خدمات پر رہنے والے پابندیوں نے وادی کشمیر کے شعبہ تعلیم، تجارت اور میڈیا کو بری طرح متاثر کیا ہے، بلکہ کشمیر کو کئی برس پیچھے دھکیل دیا ہے۔ خود سپریم کورٹ نے بھی اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے کو لوگوں کی اہم ضرورت اور ان کا حق قرار دیا ہے اور پابندی سے متعلق حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ کشمیر کا میں واسی ہوں، کشمیر کا رہنے والا ہوں، لیکن آج 3G نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ 2G کچھ ڈسٹرکٹس میں بحال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پریپیڈ سروسز بحال ہوئی ہیں۔ تو جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آج مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کو 5 یا 5.5 مہینے کے بعد یہ خوشی مل رہی ہے کہ پریپیڈ سروسز یہاں پہ بحال ہوئی، کافی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ منقطع ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیشتر لوگ پریپیڈ کا ہی استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں پر جب اچانک بند ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے نئے کنیکشنز بھی نکالے، لیکن ایک کانٹیکٹ جو کہیں گے ہم جو پہلے اسٹیبلش ہوا تھا وہ پریپیڈ کے ذریعے ہی تھا۔ آج اسے بحال کیا گیا، لوگ سرکار کا شکر تو ضرور کریں گے، لیکن اتنا بھی ضرور کہنا چاہیں گے کہ آج خالی وائس کالنگ کی دنیا نہیں ہے، آج انٹرنیٹ 4G 5G 6G کے اور پر اگر ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے تو وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی سہولیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اب اگر 2 ڈسٹرکٹس میں آپ نے اس کو بحال کیا تو اس کو ان دی ریسٹ آف دی ویلی آپ اسے کریے تاکہ لوگوں کو بھی اس سے بہتر سہولیت دستیاب ہو سکے۔ سر، جو آج یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے آج موبائل سروس کو یہاں پہ بحال کیا گیا اور SMS سروس کو اس وقت دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آج کل کی زندگی کو رفتار سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس کمیونیکیشن نے جس طریقے سے جو گیگ ہوا وادی کشمیر میں، اس میں کافی بریک ڈاؤنز ہوئے ہیں۔ ایک سائڈ سے تاجر محکمہ ہٹ ہوا، دوسرے سائڈ سے ایجوکیشن ہٹ ہوا، تیسرے سائڈ سے اگر ہم دیکھیں گے ایک وہ جو کمیونیکیشن بنا ہوا تھا گلوبلی ہم اٹیچ ہو گئے تھے، اس سے ہم لیک ہو گئے تھے۔ اب آج جو سٹیپ لیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے سچویشن دیکھنے کے بعد گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے ایک بیٹر اچھا انیشیٹو ہے گراؤنڈ پر، مگر امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اوور آل پورے شہر، پورے گاؤں دیہات کی بات اگر ہم کریں یا پورے اوور آل ویلی کی بات کریں تو اس کو ایک نیسیسٹی کا ٹول میں کہوں گا، اور لازمن ہے کہ جس طریقے سے ابھی کپوارہ یا دیگر علاقوں کی بات چل رہی ہے یا 2G کی بات چل رہی ہے وہاں پر، یا ابھی جو پری پیڈ سمس کو لے کر اگر اس کو تھوڑا ایکسٹینشن دیا جائے، اسے بحال کیا جائے اوور آل میں، تو راحت کی سانس لوگ لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو گیگ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے اکانومی کو لے کر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
तो इंटरनेट का अभी इंटरनेट का भी ऐलान नहीं किया, तो अभी तो अगर इंटरनेट भी बाहर हो जाएगा तो कैसा लगेगा? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि इंटरनेट के साथ साथ जो ब्रेकडाउन हुआ है खुसूसन इकोनॉमी को लेकर, अगर इंटरनेट को भी आप देखेंगे ये भी एक बहुत बड़ा टूल है जो आजकल की ज़िंदगी के साथ रफ्तारी के साथ दौड़ रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, ट्रेड का सेक्टर हो या कोई भी ऐसी चीज़। हमारे कश्मीर में जो 7 महीने से ब्रेकडाउन चला है इकोनॉमी को लेकर, जिसकी वजह से मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है, जॉब चली गई है, पैसा नहीं है, लोगों के खर्चात है और आए रोज़ देखिए कितने खर्चात बढ़ चुके हैं। तो इंटरनेट भी एक सहारा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेड, जो घर बैठ के लोग रोजगार कमा रहे थे या जो रोजगार का कारोबार कर रहे थे, अब अगर इंटरनेट भी रिस्टोर होता है तो जाहिर सी बात है 2 चीज़ों पर ज़रूर असर पड़ेगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और दूसरी साइड से अगर देखा जाए एजुकेशन सेक्टर को जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि उसका बड़ा फैक्टर जो है स्टूडेंट्स के साथ है जिनको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा भुगतान देना पड़ा। थैंक यू सर। उधर रामबन बानिहाल में भी मुकामी लोगों ने प्रीपेड मोबाइल खिदमात की बहाली और मजमूई तौर पर आयद रहने वाली पाबंदियों पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत से अपील की है कि वो जम्मू सूबे में इंटरनेट खिदमात को मुकम्मल तौर पर बहाल करे ताकि आवाम को दरपेश संगीन मसाइल से निजात मिल सके। मोहम्मद अशरफ मलिक है, मैं तहसील गुल से हूँ। तो नेट नहीं चल रहा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है, क्योंकि अगर नेट चलता तो हमें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। अगर नेट चलता तो नेट की वजह से हमें बहुत सारी आसानियाँ हो जाती। पंच हल्का पांचल ये उपराल से बोल रहा हूँ। हाँ, ये इंटरनेट सर्विसेज जो बंद है, बच्चों को बड़ी मुश्किलात है फॉर्म भरने में और ठेकेदार तक बहुत परेशान है। बाकी MG नरेगा की जो पेमेंट है मजदूरों को वो भी ऑनलाइन फंसी हुई है। इंटरनेट की वजह से बड़ी मुश्किलात है लोगों को और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसको बहाल किया जाए। सरकार ने जो है वो अच्छा स्टेप उठाया है, जो 5 डिस्ट्रिक्टों में इंटरनेट की सुविधा जो पोस्ट पेड पे यानी कि खोली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरे जम्मू प्रोविंस में इस चीज़ को बहाल करे, ताकि 5.5 महीने से बच्चों से लेकर हर एक को मतलब दिक्कत आ रही है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, बहुत सारी दिक्कतें उठाई अभी तक हमने। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो इंटरनेट सुविधा जम्मू प्रोविंस में खोले, ताकि थोड़ी सी हमारी जो परेशानी है, मुश्किलातें हैं, वो आसान हो जाए। करीब 5.5 महीने तक जहां जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खिदमात मुकम्मल तौर पर बंद किए गए थे, वहीं अगरचे कुछ दिन पहले मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने कुछ इक़दाम उठाए और सूबा जम्मू के कई अजला में, जिनमें उधमपुर, जम्मू, रियासी, कठुआ और सांबा 2G स्पीड के तौर पर इंटरनेट को बहाल किया गया। वही खिता चनाब और पीर पंजाल के लोगों का यह कहना है कि ये नाकाफ़ी है और लोगों के साथ एक बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया पे सवाल किए जा रहे हैं कि उन्हें चाहिए था कि वो पूरे सूबे जम्मू में 3G और 4G इंटरनेट सहूलियात को बहाल किया जाए, ताकि आवाम को जो दरपेश मुश्किलात इन 5.5 महीनों में रहे उनसे निजात मिले। क्योंकि अगर देखा जाए 4 अगस्त के बाद पिछले कई दिनों तक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सूबा जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, इंटरनेट खिदमात को बंद किया गया था। अगरचे अब कुछ रोज़ पहले मरकज़ी सरकार की जानिब से ठोस इक़दाम उठाए गए हैं और इन 5 अजला में 2G स्पीड बहाल कर दी गई है, लेकिन आवाम का ये कहना है कि बाकी जो बचे अजला है, जिनमें खिता चनाब के डोडा, किश्तवाड़, रामबन या पीर पंजाल के रजौरी और पुंछ है, वहाँ पर भी इंटरनेट खिदमात को बहाल किया जाना चाहिए, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। जम्मू से फौजवी के लिए मीर मुदस्सिर। और मुअत्तल कर दिए गए DSP देवेंद्र सिंह से बांग्लादेशी रवाबत से मुताल्लिक़ NIA तहक़ीक़ात करेगी। ख्याल रहे DSP देवेंद्र सिंह को हिज़्बुल मुजाहिदीन के 2 अस्करियत पसंदों के हमरा शोपियान में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अस्करियत पसंदों की फरारी में मदद कर रहे थे। इत्तलाआत के मुताबिक आर्म्स एक्ट और गैर क़ानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ एक अलहदा मुक़दमे की तहक़ीक़ात मरकज़ी सरकार की जानिब से NIA के सुपुर्द की गई हैं, जिसमें बांग्लादेशी रवाबत से मुताल्लिक़ भी जायज़ा लिया जाएगा।
उधर राजौरी और पूंछ से लगे सरहदी इलाकों में हिंद पाक अफवाज के दरमियान वक्फे से फायरिंग की तबादला जारी है। हिंदुस्तानी फोर्सेस के मुताबिक पूंछ के मेंधार सेक्टर पर दोपहर 12:30 बजे से 1:15 बजे तक पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। दूसरी जानिब राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी हिंद पाक अफवाज के दरमियान फायरिंग की तबादला हुआ। इसी दौरान हिंदुस्तानी फौजी अहदेदार ने कहा है कि जहां भी पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की जा रही है, यहां हिंदुस्तानी फोर्सेस की जानिब से भी सख्त जवाब दिया जा रहा है। और LG जम्मू कश्मीर ने आज जम्मू के अखनूर में वाक़ बुद्धिस्ट तारीख़ और मुक़द्दस मक़ामात अखनूर किले का दौरा किया है। उन्होंने एंड्रीपटनबर्ग वाल ब्रिज की तामीरी काम का भी मुआयना किया। BDC अहदेदारों और म्यूनसिपल के कमेटी के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ कामों पर तफसीलात हासिल की। So Sharirika Stupa, it was containing relics like it was first excavation, plan excavation was done in 1970. Then it was done in 1999, 2001. So this was इसका नाम है सर अखनूर है। नूर मीन्स आंखों का नूर, द लाइट ऑफ द आईज। In fact, the coronation of महाराज गुलाब। और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में तंबाकू के इस्तेमाल की रोकथाम के मकसद के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर समीर अहमद मट्टू ने शिरकत की। मीडिया नुमाइंदों की भी इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत रही। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में तंबाकू का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खात्मे के लिए मीडिया का भी एक अहम रोल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू की रोकथाम के लिए सभी को आगे आना होगा। Section 7 says any tobacco product should not be sold without a stationary warning. There should be. हमारे स्टेट में जैसे भी आपने देखा काफ़ी टोबैको का काफ़ी यूज़ हो रहा है। दो च्यूइंग टोबैको का यहाँ पे कम यूज़ है, बट एज़ फार एज स्मोकिंग इज़ कंसर्न वो काफ़ी ज़्यादा है। उस स्नफ का भी यूज़ है यहाँ पे हमारे डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में। तो काफ़ी अलार्मिंग लेवल्स हैं। और एज इट इज़ जो अभी बताया आपको यहाँ पे, इससे काफ़ी जो बीमारियाँ हैं हो सकती हैं, हार्ट की, ब्रेन की, किडनीज़ की, कैंसर्स, लंग्स की, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ब्रोंकाइटिस, और काफ़ी हार्मफुल हो सकता है छोटे बच्चों में बाय मीन्स ऑफ पैसिव स्मोकिंग। या अगर कोई लेडी स्मोक करती है उस पर भी लो बर्थ वेट, अबॉर्शंस, जेनेटिक डिफेक्ट्स, ये सब होने का डर रहता है। हम तो पूरी पुश कर रहे हैं एंड आई थिंक विल बी क्वाइट सक्सेसफुल। हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, IC कर रहे हैं। अभी हमारी वो येलो लाइन कैंपेन भी होगी बड़गाम में। तो हम पूरे लगे हैं कि इसमें जो एक्ट है कोटपा, वो भी पूरी तरह से हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे अभी यहाँ बात की गई कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये लेट आया है, लेकिन अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो कितनी अचीवमेंट काफ़ी। देखिए जो भी यहाँ पे आया एक साल में आपने देखा कि स्मोकिंग का जो हमारा बर्डन है वो कुछ अबाउट 6% कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर फिगर्स। और यहाँ पे च्यूइंग टोबैको का उतना इफेक्ट है नहीं, तो स्मोकिंग में काफ़ी इफेक्ट हुआ है जी। तो अभी आने वाले दिनों में किस तरह का जो आप रोड मैप बनाए हुए हैं ताकि इसको और कम किया जाए? इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक IC एक्टिविटीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में। जनरल पब्लिक को हमको बहुत अवेयर करना है अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोकिंग एंड ऑल दिस टोबैको यूज़। और नंबर 2 जो है, हमको लोगों को अवेयर करना है अबाउट द एक्ट, कोटपा एक्ट जो है अवेयर करना है। और इसमें एक और चीज़ है कि अब हमने यहाँ पे वो आपकी वो भी चालान बुक्स भी बना दी हैं। तो अगर एनीबॉडी इज कॉट, जैसे आपका 4, 5, 6, 7 जो इसमें है, जो क्लॉजेज हैं इस एक्ट के, उसके तहत तो हम किसी का भी जो उसके अगेंस्ट जा रहा है उसका चालान कर सकता है। और उसको चालान करने के लिए कोई भी सब इंस्पेक्टर एंड अबव लेवल का आदमी कर सकता है।
और अब जायज़ा लेते हैं कि कश्मीर में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद यहाँ किस तरह के हालात का लोगों को सामना है। बारामूला उड़ी के मकामी लोगों ने यहाँ तेज़ी के साथ बर्फ़ की सफाई के कामों को जारी रखने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। ख्याल रहे सरहदी इलाका उड़ी में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद यहाँ ज़िंदगी ठप होकर रह गई थी। बुनियाद में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स को कंपेयर करें तो इस साल एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी प्रोएक्टिव लगी, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती थी, आज पावर सप्लाई है, रिस्टोर की गई है। विद इन 24 आवर्स में आपका पानी चल रहा है। आपके जो प्रायोरिटी के जो रोड हैं जो ज़रूरी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिए हैं। जो फार फ्लंग एरियाज़ में उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आप ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोएक्टिव थी, रेडी थे। दुदरन और लड़ी वाला जो एरिया है, दुदरन से ऊपर आप चौटाली चुरुंडा एरिया जो है वहाँ पे एवलांच आया हुआ है, और डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर डैमेज हुआ है लोगों का तो उनका थोड़ा उनको कंपनसेशन दी जाए। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बिझामा उड़ी बोनियार से हूँ। ये आपने देखा होगा कि हालिया जो बर्फबारी हुई बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ। यानी मुझे लगता है कि साहब 20 या 25 साल के बाद ऐसा जो है स्नोफॉल कश्मीर में हुआ, तो इससे बहुत सारी सड़कें जो हैं जो राब्ते थे मुनक़ता हो गए। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही मशकूर है, खासकर डीसी बारामूला के, कि उन्होंने दूसरे ही दिन जो है तमाम रोड्स जो हैं हमारे इलाके के जितने भी रोड्स हैं, उड़ी के हैं, बोनियार के हैं, हमारे बिझामा के, क्लियर करवाए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर पावर डिपार्टमेंट को, कि इतना हैवी स्नोफॉल होने के बावजूद भी उन्होंने पावर रिस्टोर रखा। ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा में अगरचे हुकाम की जानिब से बर्फ़ की सफाई के काम जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुपवाड़ा के बेशतर हिस्से बर्फ़ से भरे हुए हैं। सड़कें, गली कूचे कई फुट बर्फ़ से भरे हुए हैं। यहाँ कई एक मकानात को भी होने वाली शदीद बर्फबारी से नुकसान पहुँचा है। पता कि यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फबारी देखी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वो इस चीज़ के लिए तैयार रहे, क्योंकि कश्मीर तो जाना जा रहा है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर कभी भी भारी बर्फबारी हो सकती है। और एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने पहले ही एक ग्रेटर कश्मीर में शाया हुआ था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होने वाली है। तो इनको चाहिए था कि पहले ही इस मामले में पूरी तरह से तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन सड़कें तो आपके सामने ही है, देख लो कि सड़कों पर बर्फ़ पूरी जमी हुई है। जितनी बर्फ़ यहाँ पर पहले कल थी उससे ज़्यादा आज आप देखो। गुजारिश कर रहे हैं कि जो इनर लिंक्स है इन पर जल्द से जल्द बर्फ़ उठाओ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आज मुझे फेल लग रही है। ये देखो इसके लिए पहले से इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन आज देखिए हमारा मैन टाउन है, यहाँ हम अपने गांव से आए, बड़ी मुश्किल से आए, हमें देखना था कारोबार कैसे देखना था यहाँ पे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बड़ी पूरा से मैं यहाँ आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट इंतजाम है वो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल भी कोई मतलब फैसिलिटी नहीं रखी है। देखो लोग पैदल जा रहे हैं, पेशेंट का सवाल है, दूसरे लोगों का सवाल है, बिल्कुल नाकाम रही है एडमिनिस्ट्रेशन, फेल्ड एज पर यूजुअल। जिस तरह से पिछले साल में फेल्ड रही है एज यूजुअल, इसी साल भी ऐसी फेल है। सेम कोई प्रोसीजर नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आप शायद वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। ये तो छोटा टाउन है, यहाँ पर थोड़ा बर्फ हटाया गया है। जहाँ से मैं आया हूँ वड़ीपोरा से, वहाँ से मेरा यहाँ आना है मैं 3-4 घंटे, जहाँ 5 मिनट का सफ़र मुझे 4 घंटे में तय करने पड़े।
फीट तक, जो हायर रीजन है 6 फीट तक भी बर्फ गिरी है। तो नेचुरली इसको टाइम लगेगा थोड़ा क्लियर करने में, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी रही है अभी वो हमारे मेन रोड्स क्लियर्ड हैं। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ हम कनेक्टेड हैं, हंदवारा कनेक्टेड है और हम बारामूला के साथ कनेक्टेड हैं, सोपोर के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे जो इंटरनल ब्लॉक रोड्स हैं, ब्लॉक्स में भी हमारे 3-4 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, 2 ब्लॉक से भी रहते हैं, तो वो भी शाम तक इंशाल्लाह 5 बजे तक तो लोगों को बियर करना पड़ेगा। उसके साथ 10 बजे का टाइम था, यहाँ स्लैडंग आ गया, तो हम तकरीबन मानते हो अपने अपने घरों में मसरूफ थे। तो इनका जब शोर ककार हुआ तो हमने देखा ये पूरे इस मकान में दब गई थी। फिर तकरीबन हम 50 आदमी यहाँ जमा हुए तो इनको निकाला बर्फ से। तो ये बड़ी मुश्किल होगी, हमारा कोई रब्ता गवर्नमेंट की तरफ से किसी से नहीं हो सका। तो अजी अब आज तक शुक्रिया अल्लाह का, आपसे रब्ता हो गया, आज यहाँ पहुँचे आप। तो यहाँ इतना ख़तरात है कि हमारे को कोई गवर्नमेंट का कोई सहारा अभी तक मिला नहीं, नहीं हमारे सरपंच, नहीं हमारे वार्ड मेंबर, नहीं हमारे कोई भी बड़े गांव के जो भी बड़े लोग हैं वो हमारी तरफ, जब वोट का टाइम आता है वो हमारी तरफ हमारे कदमों को छूते हैं। तो जब हमारा मसला आता है तो फिर हमको ढूंढ कर भी नहीं मिलती। तो इसको 6 बच्ची हैं, 6 लड़की हैं इसके पास लड़का कोई नहीं है और कोई, आप बूढ़ा बेचारा ये क्या कर, अगर हम बस्ती वाले भी नहीं होते तो ये फिर मर गए थे। एक नहीं 2 दिन से वो मकान खाली करके दूसरे मकान में बैठा है। सरपंच और पंच का और चौकी अफसर का सबों का फर्ज बनता है बचाव कार्रवाई करनी है। इनका ध्यान ही नहीं, इनको ख्याल ही नहीं इस चीज़ का है। क्यों अवाम जो है ये हुकूमत की है, अगर अवाम ने ये हुकूमत किस चीज़ की, किसी चीज़ की नहीं है। हम गुजारिश करते हैं, कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ से नाइंसाफ़ी होती है, कंड इलाके के लोगों के साथ ना 24 घंटे नाइंसाफ़ी होती है, बर्फ़ में डूबे हैं, हर जगह मुसीबत इनको होती है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, हमें पानी नहीं है, हमें बिजली नहीं है, हमें कोई यहाँ कोई चीज़ मैसर नहीं है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक्त छोड़कर हम गरीबों के पास आप लोगों को पहुँचे। बाकी और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कई एक मुकामात पर बंद रहने के नतीजे में ताहाल ट्रैफिक हस्ब मामूल बहाल नहीं हो सकी है। रामबन में गाड़ियां रुकी हुई हैं। इस मौके पर मुसाफिरीन और ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया है। उधमपुर से निकले हुए अभी रोका हमें रामबन में, नहीं कोई खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं, कुछ पीछे छोड़ दे, यहाँ पर रोक दिया। कहाँ से आए हैं आप? हम आए पठानकोट से। यहाँ से पहले आपको कहीं नहीं रोका? कहीं नहीं रोका। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको? बोले जी रास्ता बंद है, फिर जाम लगा है। अब आप क्या चाहते हैं? हमने से लोग उखड़ा जाना भी उखड़ा लिए। जम्मू से आए थे, कल 10 बजे चले थे और यहाँ हम 9 बजे पहुँच गए थे। 9 बजे से अभी तक हमें रास्ता नहीं मिला, गाड़ियाँ बहुत निकाल दी लेकिन हमें रास्ता अभी तक दिया नहीं है। ऐसा क्यों है जी? ये तो फिर पीछे से रोक देने चाहिए आदमी, गाड़ी सवारी पीछे रोक दी जाए। यहाँ हम बहुत परेशान हो रखे। कल के रात को 9 बजे बंद कर दिया, बोले भाई अब पूरी रात गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सुबह भी गाड़ियाँ जा रही है। से आया हूँ, वहाँ पीछे तो कहीं नहीं रोका है, यहाँ रामबन में रोका है वगैरह, वहाँ से तो छोड़ दिया है इन्होंने। अब क्या बताया जा रहा है आपको? बोल रहे हैं कि आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, इसको क्लियर करेंगे पहले तो फिर छोड़ेंगे हमको। आइए नाज़रीन रुख करते हैं श्रीनगर का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। हेलो शबनम, आज मरकजी वज़रा के दौरा जम्मू कश्मीर आगाज़ हुआ है, उसका किस तरह का तासुर मिल रहा है कश्मीर से? देखिए, दफा 370 की मनसूखी के बाद अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा मौका है जब मरकज ने एक बड़ा फैसला लेकर यहाँ 36 जो मेंबरान पार्लियामेंट है या मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और जो यूटी बनी है मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ का दौरा कर रही है। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों के क्या तासुरात हैं, देखिए जिस तरह दफा 370 की मनसूखी हुई और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, अभी भी मामूल के मुताबिक हम कह सकते हैं कि सूरत हाल पेट्रोल नहीं लौट आई है। अगर यहाँ पे इंटरनेट की बात करें, कहीं पे भी इस तरह अभी इंटरनेट साफ नहीं चल रहा है जो 4 या 5 अगस्त से पहले चल रहा था। हालांकि कोशिशें जारी है कि बहाल किया जाए, ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे 2G चलाया जाएगा, यहाँ पे प्रीपेड सर्विस चल रही है, यहाँ पे नहीं चलेगा, इस इलाके में नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है अभी शायद खुफिया इदारों से इस तरह की इतलात मरकजी सरकार या रियासती इंतजामिया को नहीं मिल रही है कि वो बेहतर तौर जो है लोगों को ये सहूलियात फराहम करे। अब जो एक टीम यहाँ पे आई है, देखना यह है कि इस टीम के जो दौरा जो इनका है, क्या
ये लोगों को यहाँ अवेयर करना है दफा 370 की मनसूखी के बाद जो सूरत बनी है, या कुछ फायदे गिनवाने हैं कि 370 की मनसूखी के बाद ये फायदा इनको मिलेगा, या कि सिर्फ ये एक सियासी ट्रेंड है यहाँ तक आना और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे, तो जाहिर सी बात है लोग इससे खफा होंगे। लेकिन अगर कुछ कर पाए, अगर लोगों को राहत मिलती है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो ये बड़ा काम होगा जिसका इंतजार है, और ये एक हफ्ता इंतजार करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। प्रीपेड मोबाइल और 2G खिदमात की बहाली पर किस तरह के तासुरात मिल रहे हैं शबनम? जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि ये जो 2G ये जो सर्विस कई इलाकों में बहाल ये जो 2G की बात कही गई है कि सारे ऑफिशियल वर्क के लिए बात हो रही है, कश्मीर के कुपवारा और बांडीपोरा में चलने की बात हो रही है, लेकिन अभी जिस तरह मामूल के मुताबिक जो सर्विस चलती है अभी इस तरह नहीं हो पाई है ये चालू। अब जम्मू से भी हमने कई लोगों से बात की, उनका भी यही कहना है कि 2G जो सर्विस है वो भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। जाहिर सी बात है जब आपको फायदा किसी चीज का नहीं मिल रहा है तो आप उसको कैसे माने कि ये चल रहा है। हाँ, ब्रॉडबैंड सर्विस जम्मू डिवीजन में चल रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में अभी ये हालांकि ऐलान भी किया गया था, खासकर जरूरत अगर अभी लोगों को आप नहीं दे रहे हैं, आम लोगों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सरकारी दफातर हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को काम होता है, जहाँ पे आम लोगों के मसाइल हल होने होते हैं, उसकी वजह से ताखीर हो जाती है, तो वो नहीं कर पा रही है सरकार। तो ये तो ऐसी बात है जो आप कुछ कहते हैं और कर अमलाते नहीं है। ग्राउंड पे सिचुएशन को बेहतर बनाने की जरूरत है, अमलाने की जरूरत है। उस सूरत को अल्फाज जो आप दोहराते हैं टीवी पे आके, मीडिया पे आके, फिर उसको ठीक करिए। ग्राउंड में लोगों को लगना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो आप अमलाते हैं और सही चीज हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये दावे होते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ऐसी नहीं लग रही है, बेहतर नहीं लग रही है जो लोग ये महसूस करें कि उनको राहत मिल रही है। जहाँ 2G की बात कर रही है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब दिखाया गया है, 4G खिदमात भी वहाँ पर जो है कम पड़ रही हैं, तो ऐसे दौर में जहाँ 4G चल रहा है 2G क्या फुलफिल कर पा रहा है और ऑफिशियल्स जो काम होते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि हमने इतने महीनों में देखा कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने होते हैं या जो मुल्क के दूसरे ऑनलाइन इम्तहानात के लिए फॉर्म भरने होते हैं, बहुत से काम, सब काम अब इसी तरह होते हैं। जो आपने डिजिटल इंडिया की बात की, डिजिटल इंडिया आप कहिए, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें और उसमें भी अगर आप कश्मीर के हवाले से बात करें, डिजिटल की कोई यहाँ बात चलने वाली नहीं है, ना अभी ऐसा कुछ है, क्योंकि लोगों को सख्त परेशानियां है, स्टूडेंट्स को सख्त परेशानी है। इस जो कड़ाके की ठंड है, इस सर्दी के आयाम में जो है बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको अपने फॉर्म भरने के लिए लाइनों में रहना पड़ता है, उनको पेरेंट्स साथ होते हैं। एक अजीब किस्म का अजाब जैसे नाजुल हुआ है और सरकार शायद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इसमें हमें ये लगता है कि जब किसी शख्स के पास सब चीजें होती हैं, उसे लगता है कि कोई मसला नहीं, अगर उनके पास नहीं है तो फर्क कोई नहीं पड़ता हो, क्योंकि उसको वो तकलीफ नहीं है। इन लोगों को अगर ये तकलीफ दे, जो लोग इसके हाकिम हैं, जो बने हैं, जो इसको छोड़ सकते हैं, चला सकते हैं, उनको बिल्कुल एहसास होगा कि किसी की बच्चियां जो होती हैं वो कितनी तकलीफ झेलती हैं। अगर उनकी बच्चियों को तकलीफ नहीं, उनके घर वालों को तकलीफ नहीं, खुद को उनको तकलीफ नहीं, वो कैसे महसूस करेंगे? इस चीज को महसूस करने की जरूरत है, खासकर स्टूडेंट्स को जो परेशानियां है, तालीम का जो मुस्तकबिल यहाँ का है, यहाँ का यूथ जो है क्या बना रहे हैं हम उसको, इसकी तरफ तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। अब जो दौरा जिस पे हम इस वक्त बात कर सकते हैं, करते हैं, जो 36 मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कुछ करके जाएं, कुछ राहत दे के जाएं जम्मू कश्मीर के अवाम को, तो बड़ा काम होगा। वरना उनका दौरा, यहाँ आना, खाना पीना, बाकी एक हफ्ता गुजारेंगे, वापस जाएंगे, अगर लोगों को राहत नहीं होगी तो सवालात बहुत उठेंगे फिर। जी, सभी रायगा हो जाएगा। सियासी महरूमीन की अगर हम बात करें, सियासी महरूसीन की, तो रिहाइयों से मुताल्लिक़ क्या उम्मीद की जा रही है उनकी? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जारी है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी 5, कभी 4, कभी 2 ऐसे सियासी जो कारकुन है, लीडरान है, उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो बड़ी क़यादत जिसे हम कहेंगे, जिसपे जो वज़ीर आला यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, या सजाद बिन लोन जैसे, या डॉक्टर शाह फैसल जैसे जो बड़े नाम है, जब तक इनकी रिहाई मुमकिन ना हो तब तक आप ये ना माने कि कोई चीज ठीक हो रही है। हाँ, जो प्रोसेस यहाँ पे एक नया फॉर्म या नया फ्रंट सामने लाने की कोशिश हो रही है, अगर वो चीज होती है तो फिर ये देखना होगा कि क्या
जो बड़ी जमातें हैं यहाँ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या दीगर जो जमातें हैं या डॉक्टर शाह फैसल जैसे लोग जो है, क्या उनको छोड़ के उनको जमहूरी अमल में सामने आने की छूट दी जाएगी, जल्द से जुलूस करने की छूट दी जाएगी, या जो सियासी अमल जो जमहूरी अमल है क्या उसमें उनको चलने की इजाज़त होगी, वो बड़ा सवाल है। बाकी जो प्रोसेस है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है जहाँ सरकार को या इंतजामी को लगता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा जो है वो बड़े लीडरान जो है वो जब निकलेंगे क्या वो बात कर पाएंगे जो दफा 370 की मनसूखी के बाद से पहले वो कर रहे थे, या कि वो इसी रंग में अपने हाथ रंगेंगे। ठीक है, बर्फबारी की अगर हम बात करें तो कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बुनियादी इंतजाम की क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बर्फबारी ने तो पहले ही यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स जो है, किसान लोग जो हैं, जो बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है अगर हम कहें तो उनकी कमर तोड़ दी थी। अब दूसरी बार और फिर तीसरी बार जो ये बर्फबारी हुई है, काफी मुश्किलात हैं लोगों को। दूर दराज इलाके अभी भी जैसे कट के रह गए हैं। हालांकि इंतजामिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन बर्फबारी इतनी शिद्दत की थी कि इंतजामिया ने हाथ खड़े किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम ठीक हो रहा है, बहाल ये चीज़ें की जा रही है। बिजली का निज़ाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी जो हम कहेंगे कि अभी बिजली उस तरह नहीं मिल रही है जिस तरह लोगों को मिलनी चाहिए। खासकर सबसे बड़ा सवाल जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का है, जहाँ आने वालों को भी परेशानी है और कश्मीर से बाहर जो रियासतें हैं वहाँ जाने वाले जो लोग हैं उनको भी परेशानी है। हवाई रास्ता मुनक़ता रहता है, लोग फंसे हैं। खासकर जो यहाँ का एशियाई खुर्दनी की जो चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती है, या यहाँ से जो फ्रूट बाहर की रियासतों में नहीं जा पा रहा है, मंडियों की तरफ नहीं जा पा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है ये एक सवालिया निशान है इस सरकार पर जो इस वक्त मरकज में चलाई जा रही है। ठीक है शबनम फयाज, हम आपको हुकाम की जानिब से ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ कवरेज पर एजाज़ से नवाजा गया है, उसके लिए 4TV की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और साथ ही ये बताइएगा कि हादसात की रोकथाम के लिए किए जाने वाले सरकारी इक़दाम कितने मुफीद साबित हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, रिवार्ड के हवाले से आपने बात की, बड़ी बात है और हम इस पे खुशी भी महसूस करते हैं और अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि ट्रैफिक हुकाम को बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत, ड्राइवर हजरात को बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हादसों में जिंदगियां गंवा देते हैं। इसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं, लेकिन ट्रैफिक हुकाम जो है उनको इतनी ताकत बख्शी गई है सरकार की तरफ से कि वो ठीक कुछ कर सकती है। उन्हें चाहिए कि वो मजीद बेहतर काम करें ताकि इन हादसात से इंसानी जिंदगियां जो है वो महफूज रह सकें इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया शबनम फयाज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ताज़ा तर अपडेट्स हमें देने के लिए। शबनम फयाज से हमने बात की है रास्त कश्मीर से। अभी जानते हैं आगे की क्या है खबरें। जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि आवाम को ट्रैफिक क़वाइद से वाकिफ़ करवाने के लिए महकमा ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से ट्रैफिक सेफ्टी वीक की तहत कई एक प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए गए हैं। ताहम हफ्ता भर जारी रहने वाले ट्रैफिक सेफ्टी वीक के मौके पर महकमा ज़िला तरक्यात पुलवामा की जानिब से पुलवामा में मीडिया नुमाइंदों को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। ट्रैफिक क़वानीन से लोगों को वाकिफ़ करवाने वाली मुहिम में ताउन करने और लोगों तक महकमा पैगाम को पेशा वाराना तौर पर पेश करने के ज़िम्न में सहाफ़ियों को एवार्ड से नवाजा गया। ताहम आवाम की शऊर बेदारी के लिए अपनी बेहतरीन कवरेज के लिए 4TV जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ शबनम फयाज को भी अवार्ड से नवाजते हुए उनकी खिदमात को सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला पुलवामा रघु लंगर ने सहाफ़ियों को अवार्ड से नवाजा। बाला नवापुरा पुलवामा में मुकामी अवाम ने बिजली की अदम सरबराही पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 दिनों से वो बिजली की फराहमी से महरूम हैं और हुकाम इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
15 दिनों से हम बिजली से महरूम हैं। डिपार्टमेंट से हम अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है वो 15 दिनों से यहाँ पे नहीं है और हम 15 दिनों से महरूम हैं। कोई यहाँ पे नहीं आया है, ना हम किसी जेई तक को भी हम नहीं जानते हैं। और शदीद तरीन बर्फबारी के बाद जहां कश्मीर में लोगों को बरखी और पानी की सरबराही के लिए कई एक मसाइब दरपेश हैं, वहीं बारामूला में सारिफीन के घरों तक LPG गैस सिलेंडर्स पहुंचाना मुश्किल तर हो गया है। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हमने रोड खोले हैं तो फिर होम डिलीवरी करने में क्या प्रॉब्लम है इनको? ये वक्त की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि गाँव से लोग कंधे पे लेके सिलेंडर लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको गैस नहीं मिल रहा है, फिर भी यहाँ से खाली हाथ वो वापस जाते हैं। एक इनका दिन ज़ाया और घर में रसोई गैस है नहीं है। फिर गाँव में होम डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? यही देखने की बात है। आपकी वसादत से हम ये आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं ये बात कि झूठे दावा ये बंद है कि इस वक्त गैस की काफ़ी क्राइसिस मतलब महसूस हो रही है हर जगह, हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में। क्यों गोदामों में इनके पास गैस पड़ा हुआ है लेकिन होम डिलीवरीज नहीं हो रही है। इसका कारण जानने के लिए आज हम DC साहब के पास आए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से मतलब इस वक्त स्टेशन से बाहर थे। हम सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये जो गैस की होम डिलीवरी है उसको यकीनी बनाया जाइए कि मतलब आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर फिर एक नजर। मरकजी वज़रा का पहला काफिला जम्मू के बजाय पहुंचा श्रीनगर। जतेंद्र सिंह ने मोदी की जमकर की तारीफ। दफा 370 के खात्मे का किया दिफा, कहा मोदी है महापुरुष। मरकजी वज़रा का दौरा जम्मू कश्मीर गुमराह कुन। गुलाम नबी आज़ाद का रद्द-ए-अमल। यूसुफ तारिगामी वज़रा के दौरे को करार दिया महज दिखावा। कश्मीर के लिए प्रीपेड मोबाइल खिदमात बहाल। रोहित कंसल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के 8 अजला व्हाइट लिस्ट से बाहर। महदूद इंटरनेट भी मुअत्तल। मुअत्तल DSP रविंदर सिंह मुकदमे की NIA करेगी तहकीकात। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद हनूज आम जिंदगी मुतासिर। अवामी शिकायत इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। इसी के साथ ही कश्मीर बुलेटिन खत्म करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।